Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are in great health. Today I am here with your prep English reader. So let's open page number 10 for your new lesson. Okay, first of all, mention today's date and day on the top. Okay, in your last lecture, you have learned about the use of this. Today you are going to learn about the use of that. We use that when something singular is far from us. Dear students, if you remember, आपने last lecture में use of this सीखा था और इसमें आपने ये सीखा था कि जो this है, we use this along with singular and if that thing is near, ठीक है, वो singular object, singular चीज़ जो हमारे near हो, करीब हो. यहाँ पे आप लर्न कर रहे हैं अबाउट दैट, यूज ऑफ दैट. सो दिस हम यूज करते हैं जब कोई सिंगुलर चीज करीब हो. एंड वी यूज दैट व्हेन समथिंग सिंगुलर इज फार फ्रॉम अस. फार मतलब दूर. दैट हम कब यूज करते हैं? हम दैट तब यूज करते हैं जब कोई सिंगुलर ऑब्जेक्ट, सिंगुलर चीज हमसे फार हो, दूर हो. ठीक है, आपको दोनों का डिफरेंस समझ आ रहा है? दिस जब कोई चीज करीब हो, दैट जब कोई चीज दूर हो. सो लेट्स रीड. That is a car. That is a car. Look at the boy and look at the car. There is a difference between them. ठीक है, बॉय कहाँ पे है और कार कहाँ पे, तो वो उसे पॉइंट करके, इशारा करके दूर से बता रहा है कि दैट इज अ कार. सो दैट मीन्स कि इन दोनों के बीच में डिफरेंट डिस्टेंस है. ठीक है, फार है कार इससे. सो दैट्स वाई वो किस तरह बता रहा है? वो बता रहा है दैट इज अ कार. नेक्स्ट, that is an onion. That is an onion. That is a bird. That is an ant. That is a girl. That is an iron. See, dear students, all these objects are far from this boy. So that is why he is saying that. अगर ये चीज़ें, जैसे आपने पिछला लेक्चर देखा था, ये जो चीज़ें उसके करीब थी वो दिस कह रहा था, बट दिस टाइम सारे ऑब्जेक्ट्स उससे दूर हैं, फार हैं. सो दैट्स व्हाई ही इज सेइंग दैट. ऑलराइट, और ये सब चीज़ें आप अगर देखें तो ये क्या है? सिंगुलर हैं, सिंगल हैं, एक हैं. ओके, सो वंस अगेन इसे हम रीड कर लेते हैं. दैट इज अ कार. दैट इज एन अनियन. दैट इज अ बर्ड. दैट इज एन एंट. दैट इज अ गर्ल. दैट इज एन आयरन. Okay, now your turn. This is a tree and that is a leaf. Look here, tree जो है इस boy से near है, so that is why वो क्या कह रहे हैं? This is a tree. जबकि leaf जो है उससे far है, so वो कह रहे हैं that is a leaf. आपको difference clear हो रहा है दोनों में? This and that के use समझ आ रहा है आपको बेटा? Very good. Next देखते हैं. This is a flag and that is an aeroplane. This is a candle and that is a doll. ठीक है, जो चीज़ें से करीब थी वो this यूज कर रहे हैं, जो चीज़ें ऑब्जेक्ट से दूर है उसके लिए वो that कह रहा है. वंस अगेन रीड कर लेते हैं. This is a tree and that is a leaf. This is a flag and that is an aeroplane. This is a candle and that is a doll. So dear students, this is all from the reader. Now we will move towards your workbook of English. Okay, dear students, I am on page number 22 of your workbook English. Mention today's date, then day. Today in class पर we are going to do phonic practice of cook. ठीक है, आपने इससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी पहले की और हमने अपने रीडर में भी पढ़ा था. C और K की साउंड मिला के क्या हो रहा था? cook. ठीक है, begin your work with Bismillahirrahmanirrahim. Say Bismillahirrahmanirrahim once again. Make new words with cook. ओके, सो हमने इस साउंड के साथ न्यू वर्ड्स बनाने हैं. अब हम क्या कर रहे हैं? हम फर्स्ट वन में जो है हम इस साउंड के साथ, cook के साथ, हम पहले एक और लेटर मिला रहे हैं, दैट इज अ. ए की साउंड हम मिला रहे हैं इसके साथ अ. सो अ और cook मिला के क्या बना? एग. एग, अ क एग. ब एग, back,
back, back. So we have to write here. कंबाइन करके हम इसको यहाँ पे लिखेंगे back, 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 sack, 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 sack. Very good. Now we are going to add a sound in k. ठीक है, a, ack, ack. So हम अब ack के साथ जो है वो एक और साउंड मिला के हम इसके वर्ड्स बनाएंगे. ड ack, deck, ड ack, deck, ड ack, deck, p ack, peck, p ack, peck. We have to write peck. Then n ack, neck, n ack, neck. All right. Next one is the sound of e, k, ick, e, k, ick, k, ick, kick, k, ick, kick, p, ick, pick, p, ick, pick. Next one is ick, sick, ick, sick. All right. So हमने क्या किया, हमने क की साउंड में जो है वो हमने जो है वो पहले ए की साउंड मिलाई, देन ई की और देन आई की. फिर हमारा जब ए की साउंड मिली, एक एक एक, आई ई इक. सो हमने इससे वर्ड्स बनाए बैक, पैक, सैक, डेक, पैक, नेक, किक, पिक, सिक. So now moving towards the next page of your word book, page number 23. Now we are having the same practice. Make new words with cook. Okay. So cook, awk. अब हमने ओ मतलब हम देखें, हम अब ओ मिलाएंगे, फिर यू. हमने ए आई मिलाया, ओ यू. दैट मीन्स कि हम सारे वॉवल्स जो साउंड्स हैं हम उनको इस साउंड के साथ मिला के हम वर्ड्स बना रहे हैं. ठीक है. सो ओ कुक, ऑक, ल ऑक, लॉक, ल ऑक, लॉक, र ऑक, रॉक, र ऑक, rock, sock, sock, sock. Now a cook, uck, d uck, duck. अब हम लिखेंगे d uck, duck. Now l uck, luck, l uck, luck. Next one is uck, suck, suck. Sahi. Now more cook word. Blue ack, black, blue ack, black. We are going to write black. Br ick, brick, br ick, brick. Okay. Then st ick, stick, st ick, stick. Then tr uck, truck, truck. All right. So अब इन सब वर्ड्स को हम once again पढ़ लेते हैं. Lock, rock, sock, duck, luck, suck, black, brick, stick, truck.
ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये हमने जो है क की साउंड में जो है वो हमने सारे वॉवल जो साउंड्स थे उनको ऐड करके हमने न्यू वर्ड्स जो हैं वो बनाए और आपने इनको रीड भी किया। सो अदर देन दीज भी आप जो है वर्ड्स बना सकते हैं। आप ज़रूर प्रैक्टिस करें घर में अपनी किसी रफ नोटबुक वगैरह पे, और अगर आप बनाते हैं तो आप ज़रूर हमसे अपनी पिक्चर्स वगैरह शेयर करें। ओके, मूविंग टूवर्ड्स योर नेक्स्ट पेज, दिस वन इज़ योर होमवर्क शीट बेटा। फोनिक प्रैक्टिस आप ख एंड ऑ, सो कंप्लीट द मिसिंग वर्ड यूजिंग क एंड ओ। सो यहाँ पे आपको देखें मिसिंग वर्ड्स दिए हुए हैं, इनके अंदर जो स्पेलिंग जो है इनकी इनकम्प्लीट है, आपने इनको इन दोनों की हेल्प से जो है वो फिलअप करना है और इसको कंप्लीट करना है। डिक्टेशन वर्ड्स आपकी लिस्ट नंबर 3 जो है वो यहाँ पे आप कॉपी करेंगे। दिस वन इज़ फॉर योर होमवर्क। आफ्टर योर होमवर्क शीट we are at page number 25, and on page number 25 here we are having use of that, mention today's date and day. Okay, use of that, I am a painter, in I am painter today you have to color in that, ठीक है। that को आपने कलर करना है, इट्स अप टू योर चॉइस, आप कोई भी कलर इसमें कर लें। देन आपने मी एंड माई फ्रेंड्स में प्रैक्टिस मेकिंग सेंटेंसेज यूजिंग दैट विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर। ओके, आपके घर में बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपकी अप्रोच से थोड़ा दूर होती हैं, जिन्हें आप जो है वो दूर से देखते हैं, दूर से टच करते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने ऐसी कोई भी चीज़ है, ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो आप अपने फ्रेंड्स और पेरेंट्स के साथ उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। सपोज आपसे कोई चीज़ दूर पड़ी, आप बता सकते हैं दैट इज़ अ बॉक्स, दैट इज़ अ कर्टन। इस तरह जो है आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो आपने ज़रूर प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ये चीज़ अच्छी तरह से लर्न हो जाए। Then if you need further information or further guidance related to this topic, you can find this in your prep CD that is on page number 10, ठीक है। दैट की जो आपकी वर्कशीट है होगी या जो भी सारा आपका होगा इससे रिलेटेड गाइडलाइन, वो आपको पेज नंबर 10 में आपकी इंग्लिश की CD में मिल जाएगी। सो आप ज़रूर वहाँ से भी इसको हेल्प ले सकते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू मेक सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द गिवन पिक्चर्स, ठीक है। और हमने क्या करना है, वी हैव टू यूज़ अ और एन केयरफुली। ऑलराइट, सो द फर्स्ट वन इज डन फॉर अस, दैट इज़ अ कार। ये देखिए यहाँ पे कार बनी हुई है, तो उन्होंने कहा दैट इज़, ये आपको डॉटेड फॉर्म में दिया, इसको हम ट्रेस कर लेते हैं, आ कार, दैट इज़ अ कार, and then full stop. Next one is bird. We are going to write that is a bird. Bird. We are using a because B is from consonants. Next one is ant. That, that is an. And a is from vowel sound. That's why we are using an. Okay. That is an ant. Next one is a girl. So we are going to write that is a girl. G is sound from the consonant, so we are using a along with girl. Then the last one is that that is a truck. Truck. Okay dear students, so this is all from today. ये आपके जो हैं वो हमने दैट से जो है सेंटेंसेस डेवलप किए। अदर देन दीज पिक्चर्स भी आप कोई भी पिक्चर्स, कोई भी जो वर्ड्स हैं वो लेके आप जो है अपने दैट के सेंटेंस जो है डेवलप कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वंस अगेन मैं आपको रिकॉल करवा दूँ दैट इज़ यूज अलॉन्ग विथ सिंगुलर, सिंगल ऑब्जेक्ट के साथ, एंड सिंगुलर दैट इज़ फार फ्रॉम अस, उस सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ जो हमसे दूर होता है, ठीक है। एंड दिस इज़ यूज अलॉन्ग विथ सिंगुलर विच इज़ नियर फ्रॉम अस। सो बेटा आपने इसको ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। अगर आप नेक्स्ट पेज पे आते हैं, सो दिस वन इज़ योर होमवर्क शीट। डेज ऑफ वीक जो कि हम पहले भी कर चुके हैं, आपने डेज ऑफ वीक जो है वो यहाँ पे लिखने हैं। ट्यूसडे आपको दिया हुआ, अदर देन दैट आपने जो है बाकी 6 जो है वो राइट करने हैं, और फिर आपने फॉनिक प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि हमने पहले पिछले पे की, साउंड के साथ जो है हमने मिला के जो है वो यहाँ पे कंप्लीट करना है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर।
Make sure to memorize it by your heart. Inshallah, I will meet you in your next lesson. Till then, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.